Shall we pray? Dear Lord, we are grateful to you for the privilege and honor you have given us once again to come to your feet and listen to you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने ये बहुमूल्य हम पर अनुग्रह किया और सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आके कुछ बातें सीख सकते हैं। Because of what our Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary, the redemptive work, and with a shed blood, we are cleansed and we are justified, we are accepted, and we have an amazing privilege to enjoy fellowship with the living God who is on the throne, ruling and overruling. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कलवरी क्रूस पर जो भी हमारे छुटकारे के लिए किया और उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया, ताकि उसके द्वारा हमें अनुग्रह और सौभाग्य मिला कि हम आपके सिंहासन के करीब आ सके हैं और आपकी पवित्र संगति में हम शामिलित होने पा रहे। स्वर्गीय पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Please open our eyes of understanding so that we may behold the beauty and majesty of our Lord and get the proper guidance and navigation in our lives to please you and to glorify you. प्रभु जी, आप हमारी समझ को खोलिए ताकि हम आपकी सुंदरता को देख सकें, आपके बारे में सीख सकें और अपने जीवन की परिवर्तन करके हम उन दिशाओं में चल सकें जिससे आपको हम प्रसन्न कर सकें। Kindly accept our prayer because we offer with thanksgiving in the highly exalted name of Jesus Christ our Savior. और प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और महान नाम में इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ ला रहे हैं। सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। Amen. Amen. आमेन। So we have been studying 1 Corinthians, the book of 1 Corinthians written by Apostle Paul. और हम सभी लोग पहला कुरिन्थी की किताब का अध्ययन कर रहे थे जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है। So in our previous classes, we have covered the important sections, in this portion with regards to the families. और हमने पिछले अध्ययन में परिवार से संबंधित कुछ विशेष अध्ययन को सीखा था। So in our previous class, we have concluded from 1 Corinthians chapter 7, talking about the marriage and talking about the widows and talking about the issues that crop up in the marriage. और हमने पिछले अध्ययन में पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में भी देखा विवाह के बारे में, विधवाओं के बारे में और विवाह से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया। So today we have to study the sections, the third section, 8, 9, 10, which talks about paganism and Christian freedom and liberty. और आज हम कुरिन्थियों के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें 8, 9 और 10 अध्याय हैं। और इसमें हम विशेष मूर्तियों की जो चढ़ाई गई विषय के बारे में, साथ ही अन्य जो प्रेरितों के अधिकार हैं और मसीहों के कर्तव्य, उन सब के बारे में सीखेंगे। So in the 1 Corinthians chapter 8, verses 1 to 6 talks about one God, and then verses 7 to end talks about weak believer and the strong believer. और पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 1 से लेकर 6 वचन तक हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक जीवित परमेश्वर के बारे में बताया गया है और साथ ही उसके 7 वचन से लेकर आखिरी वचन तक एक निर्बल और एक मजबूत विश्वासी के विषय में बताया गया है। We just read the text, we understand the very, the images Apostle Paul talks here very clearly. और यहाँ पे अगर हम इस वचन को पढ़ते जाएं तो आराम से, आसानी से हम इसे समझ सकते हैं जो चित्र यहाँ पे पौल उसने रखा है। Let me read in English, NASB version, 1 Corinthians chapter 8, verses 1 to 6. Now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes arrogant, but love edifies. If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by him. Therefore, concerning the eating of the things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, and there is no God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things and we exist for him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him.
पहला कुरिन्ती की किताब 8 अध्याय 1 से 6 वचन के बीच में हम पढ़ते हैं। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, और अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। The Bible gives many answers to the questions what we normally face in our day-to-day life. और बाइबिल हमारे दैनिक दिनचर्या में आने वाले कई सारे सवालों का उत्तर देती है। Especially in India, many may ask questions saying that why you don't take prasadams what we give. और जैसे कि भारत जैसे देश में एक सवाल बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप हमारे द्वारा दिया गया प्रसाद या चढ़ाया गया भोजन को क्यों नहीं खाते हैं। So they say that we accommodate every religion, we believe and we respect every religion, and we come to your prayer meetings and we join with you. We eat what you give, but you don't come where we invite you, and you don't take what we give. And what is the reason behind it? और आप देखे होंगे कि बहुत सारे अलग धर्म के लोग कहते होंगे कि हम तो आपके यहाँ आते हैं, हम आपके धर्म का आदर करते हैं, हम तो आपके प्रार्थना में भी आते हैं, और साथ ही आप जो खाने को देते हैं वो भी हम खाते हैं, लेकिन आप हमारे आराधना में नहीं आते, और हम जो भोजन आपको देते हैं, प्रसाद देते हैं, वो आप क्यों नहीं खाते। ऐसा लोग सवाल करते हैं। The Bible very categorically answers this question. और परमेश्वर का जो वचन बाइबल है वो व्यवस्थित तरीके से इस सवालों का उत्तर देता है। We believe God of the Bible. और हम बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। We believe that the Bible is the Word of God and the Bible is the standard for us. Whatever we do or whatever we don't do, everything depends upon the instructions, commands, and principles given in the Bible by our Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं कि बाइबल जो है, बाइबल के परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, और बाइबल हमारे लिए जो है परमेश्वर का वचन है, और बाइबल परमेश्वर का दिया हुआ सिद्धांत है, और किस प्रकार हमें जीना है उसकी आज्ञा और सिद्धांत उसमें लिखा हुआ है, उसी का हमें पालन करना जरूरी है। So here the Bible says in verse 5, in verse 4, 5, 6 is very clear. Therefore, concerning the eating of the things sacrificed to idols, we know that there is no such thing as an idol in the world, but and that there is one God, there is no God but one. For even if there are so-called gods, the lowercase g, please try to notice here in verse 5, lowercase g. So lowercase g and uppercase g really matters. Even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords. Yet, for us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him. और यहाँ पहला कुरिन्ती 8 दिया, उसके 4, 5, 6 को हम पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। Apostle Paul is addressing to some of the questions raised by the people of Corinthians, saying that those who came from
non-Christian background, those who came from pagan background, those who worship idols. We have already seen at the time of introduction, and to them Paul is answering their questions. और पौलुस जो है यहाँ पे उन सवालों की ओर ध्यान ले जा रहे हैं, उन सवालों का उत्तर बता रहे हैं जो कुरिन्थियों देश में रहने वाले कुछ जो लोग हैं, जो अविश्वासी थे, अन्य जाति थे और मूर्ति पूजा करने वाले थे, उनके सवालों के उत्तर के रूप में ये वचन वो लिख रहे हैं। So some of them were born again from idolatry background. और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मूर्ति पूजा से फिर के वो नया जन्म पाए हुए थे। So they were asking question, should we partake in the prasadams, in the worship rituals done by the pagans? और वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अन्य जातियों के द्वारा मूर्ति को चढ़ाई गई भोजन को ले सकते हैं, और क्या हम उनकी धार्मिक रीति रिवाज में शामिल हो सकते हैं। Here Paul is saying one version in verse 4, a strong believer, one who knows there is no such thing as an idol in the world, and that there is और no God but one. चौथे वचन में, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय चौथे वचन में वो पौलुस जो है वो कलीसिया के मजबूत विश्वासियों को सिखाता है कि इस जगत में मूर्ति कोई वस्तु है ही नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। So, a believer, a category of a believer who is called a strong believer, one who counts that idols have no significance. Even if we attribute a special identity to an idol, it is just an idol, it's not God, it makes no difference. So, that is one version Apostle Paul is quoting here. और यहाँ पे मजबूत विश्वासियों को पौलुस बता रहा है कि मजबूत विश्वासी वो हैं जिनके लिए वास्तव में मूर्ति कोई महत्व नहीं रखती और वो उनके लिए कोई वस्तु के रूप में नहीं है, और उनके लिए एक ही है परमेश्वर, उसको छोड़ा कोई नहीं है। And then verse 5, he says that there could be many gods. How can there could be many god? God is only one. Na? When Bible says there could be many gods means the fallen angels who call themselves as God and who claim themselves as gods, and plural is, it's not singular. So Paul is talking about them. They are called gods and lords, Lords. और आप यहाँ देखेंगे 5 वचन में लिखा है कि इस धरती पे बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। तो बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से प्रभु हैं, ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है। तो पौलुस यहाँ पे जिन बहुत से ईश्वरों के बारे में कहता है, वे वास्तव में गिराए हुए वो स्वर्गदूत हैं जो कि स्वर्ग से गिराए गए थे। और ये यहाँ पर बहुवचन शब्द उपयोग किया गया उनके लिए, कि अर्थात बहुत से हैं जो वो ईश्वर कहलाते हैं, वो वास्तव में गिराए हुए दूत हैं। So we also, as Indians, we also have these traditions. Our own friends and neighbors, they believe many gods and many lords. आप जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में बहुत सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, कई कई लोग हैं, वो आज भी इन्हीं पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं। So verse 6 says, Apostle Paul, that there is one God, the Father, from whom are all things, and we exist for him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him. और 6वें वचन में वेद पौलुस बताते हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। In verse 6, we understand the God of the Bible is triune God. और अब 6वें वचन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। God the Father, God the Son Jesus Christ, God the Holy Spirit. और आप जानते होंगे वो तीन जो त्रिएक परमेश्वर हैं वो है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। So in the New Testament, many a time we read God the Father and God the Son Jesus Christ. Not God the Holy Spirit is evidently presented. और कई बार हम नए नियम में भी देखेंगे तो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बारे में हम देखते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातों को हम नहीं देखते हैं। It is because in Acts chapter 2, when Holy Spirit came down to this earth to live among the people of God, to live
in the people of God, then onwards he is already there in us and in our midst. And for that reason, he is not specifically mentioned again and again. और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम जानते हैं पैंतीकोस के दिन में जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों में उतर गया, तो वास्तव में उसी समय से वो परमेश्वर के लोगों के अंदर में रह रहा है और मध्य में रह रहा है। इसलिए बाहरी रूप में हम पवित्र आत्मा को अलग से नहीं देखते हैं। The Bible clearly teaches us that it is the work of the Holy Spirit, that the third person in the Trinity, helping us to understand the truths in the Word, and Holy Spirit interprets the truths in the Word. Holy Spirit communicates the truths in the Word, even about the Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं कि बाइबिल का जो परमेश्वर है, बाइबिल में सिखाते हैं हमें कि पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है उसके कार्य क्या हैं, किस प्रकार वो सहायता करते हैं कि हम सत्य को अच्छी रीति से जान सकें और उसकी सही व्याख्या कर सकें कि किस प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में है और यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में वो बातें प्रकट करते हैं। I would request every one of you to kindly note that without help of the work of the Holy Spirit, none of us or any of us can understand the truths in the scriptures. Any truth concerning God, it must be helped by the power and work and ministry of the Holy Spirit. और ये बात मैं आपको निवेदन करूं और बता दूं कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के कार्य के हम कभी भी बाइबल की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। और परमेश्वर की जो सत्य है उस सत्य को जब तक पवित्र आत्मा प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम उसे नहीं जान पाते हैं। So that is obvious, that is evident, for that is the inference. For that reason, even in verse 6, we don't find the mention of the Holy Spirit. और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ये बातें बहुत ही हमारे लिए सीखना जरूरी है। और इसमें 6वें वचन में इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे पवित्र आत्मा अलग से वर्णन के रूप में नहीं दिख रहे हैं। So Apostle Paul is inspired by the power of the Holy Spirit, ministry of the Holy Spirit, and you and I, as we study and read and meditate, understand the very power of the Holy Spirit and ministry of the Holy Spirit is the base and is the fundamental requirement. It is already taken granted, and so for that reason, again and again, we don't find the mention of the Holy Spirit. और यहाँ आप देखेंगे कि प्रेरित पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही सिखा पा रहे हैं और हम लोग भी कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा ही वचन को समझ पाते हैं, मनन कर पाते हैं। और वही सभी बातों को समझने के लिए हमारे आधार हैं और वो हमारी आधारभूत जरूरत है इन वचनों को समझने के लिए। इसलिए अलग से आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में कहीं यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं बताई गई है। So, when we carefully study the Bible, the Word of God, the Bible talks that, God is a triune God. इसलिए आप देखेंगे कि बाइबल के वचन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। One God, just one God, not three gods, one God. और वहाँ जो है 3 परमेश्वर नहीं है परंतु एक परमेश्वर है। One God, but three persons. और वहाँ पे परमेश्वर तो एक है लेकिन वो 3 व्यक्तियों के रूप में वहाँ मौजूद है। It's not that one God as God the Father in the Old Testament, and the same God as God the Son Jesus Christ in the Gospels, and the same God as Holy Spirit from epistles onwards. No, that's not what Bible says. और ऐसा नहीं है कि एक परमेश्वर है जो पुराने नियम में था वो पिता परमेश्वर और उसके बाद पुत्र परमेश्वर जो नए नियम में आया और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, इस प्रकार नहीं है। So one God, three persons. और एक ही परमेश्वर है जो 3 व्यक्तियों के रूप में है। So how it is possible three persons constituting as one God? और ये कैसे संभव है कि 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर के रूप में रहें? That's what the Bible categorically says, that it is a mystery we don't understand, but it is true. और यही एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बाइबल बताती है, ये सत्य है लेकिन कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। But not all can understand this. People may even tease, people may accuse, saying that you people believe blindly. और ये कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और सभी लोग नहीं समझ पाते हैं
और वो बिल्कुल ही अंधेरे रूप में इसे लोग विश्वास करते हैं। So people blame us, saying that you Christians, you blindly believe. How can three persons constitute as one God? How it is possible? It is logically it is not consistent. That's what many people blame us. और बहुत सारे दो लोग जो हैं हम पे दोष लगाते हैं कि आप लोग कैसे एक अंधे के रूप में कुछ भी विश्वास कर लेते हैं कि यहाँ पे तीन परमेश्वर है। तार्किक रूप से ये संभव नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे इन बातों पे अंधे के समान भरोसा कर लेते हैं, ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। But we don't blindly believe, but when we carefully study from Genesis chapter 1 to the Revelation last chapter, last verse, we clearly understand the unity of triune God is so perfect. When we look at God the Father, we find God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. और हम जो हैं प्रभु के लोग, एक किसी अंधे के समान हमने इन बातों को भरोसा नहीं किया है। परंतु जब हम विस्तृत रूप से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक पढ़ते हैं, तब हमें परमेश्वर की एकता के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार त्रिएक परमेश्वर है। और परमेश्वर के अंदर में हम पुत्र को और पवित्र आत्मा को देख पाते हैं। And at the same time, when we see the Lord Jesus Christ, we see God the Father and God the Holy Spirit. और उसी समय हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उनके अंदर हमें पिता और पवित्र आत्मा दिखते हैं। And when we also see the ministry of the Holy Spirit, we find both God the Father and God the Son, Jesus Christ. और उसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा की सेवा को देखते हैं तो उनके अंदर हम परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह दोनों को देखते हैं। Actually, it is a separate study by itself. Maybe God willing, sometime in future we will try to study that also. But Bible very clearly says in many ways, Holy Spirit will come and teach you, and I will teach you. और ये जो है एक अलग अध्ययन का विषय है, प्रभु ने चाहा तो हम कभी पढ़ेंगे। और वास्तव में आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा भी सिखाते हैं और परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं भी सिखाऊंगा। So sometimes we find Holy Spirit is teaching, sometimes the Lord Jesus Christ is teaching. और इसलिए आप देखेंगे कि कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है और कई बार प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं। Those who do not understand the truth concerning Trinity, and they are confused. Are what is this Jesus speaking and Holy Spirit speaking? Who is actually speaking? और बहुत जो लोग हैं जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं जानते, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह कैसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कैसे बात कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, केवल हम बातें कर रहे हैं। But Bible clearly says that three persons in the Godhead, in the being, in the very existence is God, just one. और बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि ये त्रिएक परमेश्वर जो हमारे मध्य में रहता है, लेकिन गौ जो परमेश्वर है वही प्रमुख है, वही सिर है, और उसी के अंदर में सब कुछ समाहित है, और वो परमेश्वर एक है। So when we say one, philosophically we understand differently. But in Hebrew term, when it say, for example, Deuteronomy chapter 6, behold, Israel, God is one. आप देखेंगे कि परमेश्वर एक ही है। और एक फिलॉसफी के तरीके से देखेंगे, दर्शन शास्त्र के रूप में, तो हम उसे एक परमेश्वर के रूप में देखते हैं। लेकिन इब्रानियों की भाषा में जब हम पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा में, तो व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में भी हम देखेंगे कि वहाँ लिखा है इज़राइल का परमेश्वर एक है करके। When we say one, it's not absolute one. और वहाँ पे एक लिखा है तो उसका मतलब केवल एक नहीं है। There in the Hebrew word ichad, Echad, ichad. Ichad means perfectly united one. अ, और आप देखेंगे इब्रानी भाषा में जो एक इसके लिए शब्द एक एक का उपयोग नहीं किया गया है, इसके जगह एहादी शब्द का उपयोग किया गया है। और It, एहादी का मतलब अंकल जी? yeah, go ahead. और एहाद व्हाट दैट मींस अंकल, एहादी? Ihad in the Hebrew, in Deuteronomy chapter 6, when he talks about, okay, you wanted to see it, no? Okay, then please turn with me to Deuteronomy chapter 6, because that is altogether a different study, by itself. Chapter 6 and verse 4. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. और यहाँ पे देखेंगे व्यवस्था की किताब अध्याय 6 के 4 में, जहाँ पे इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए एहाद शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पे लिखा है, हे इज़राइल सुन,
यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। So when we teach the doctrine on Trinity of the Bible, we talk about all these things. So there's a separate study, as I said. Here, one means not absolute one. It is properly united one. The Hebrew word written there is ihad, E-H-A-D. There is another word which is used for perfect, that is absolute one. Absolute one is different, properly, perfectly united one is different. और हम यह देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो त्रिएक बातों के बारे में स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है। प्रभु ने चाहा तो ये बातें हमें कभी और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इहाद शब्द उपयोग किया गया है अर्थात एक परमेश्वर के लिए, तो यहाँ पे एक का मतलब केवल एक नहीं है परंतु एब्सोल्यूट वन है, अर्थात विशेष एकता में जो एक शब्द के लिए उपयोग किया गया ऐसा ये शब्द है। Since you people are maybe anxious to know a little more, let me also turn to Genesis chapter 1 and verse 1. इस जानकारी को जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, इसलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 1 का 1। Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. और यहाँ उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। So the Hebrew grammar is different from English grammar or Telugu grammar, maybe Hindi grammar as well. और हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा का जो व्याकरण है वो इंग्लिश भाषा के व्याकरण से, तमिल भाषा के व्याकरण से और हिंदी भाषा के व्याकरण से अलग है। So here God means the Hebrew word is Elohim. और यहाँ पे जो परमेश्वर शब्द उपयोग किया गया है, अगर उसका हम इब्रानी भाषा में अर्थ देखें तो वहां पर उसके लिए एलोहीम शब्द का उपयोग किया गया है। Elohim means plural noun with a singular meaning. और यहाँ पे जो एलोहीम है उसका अर्थ होता है Sorry. कि ये एक बहुवचन शब्द है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक वचन के रूप में है। So if it has to be translated in a local language, we have to say gods, not God. और अगर हम इसको स्थानीय भाषा में अनुवाद करेंगे तो गॉड से शब्द आएगा, केवल गॉड नहीं आएगा। So because it is plural noun with a singular meaning. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअल में बहुवचन संज्ञा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक वचन के रूप में अर्थ है। So for that reason, the amazing plan and purpose of God is such wonderful, Even the language, God revealed himself through Hebrew, which properly fits. इसलिए परमेश्वर ने जो अपनी योजनाओं को महान और उद्देश्यपूर्ण तरीके से पूरा करता है, उसने अपने आप को इब्रानियों की भाषा के द्वारा प्रकट किया है। So many people raise questions saying that show me one verse in the Bible where it is written that God is a triune God. और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपके बाइबल में वो एक जगह बताइए जहाँ पे परमेश्वर अपने आप को त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। I would like everyone to note, please. और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वचन को अच्छी रीति से लिख लें। The Bible is not like a newspaper. और परमेश्वर का जो वचन है बाइबल है वो समाचार पत्र के समान नहीं है, Not everyone who reads will understand directly. इसलिए हर कोई जो बाइबल पढ़ता है वो इसे सीधे समझ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। The Holy Spirit who inspired the author to write in black and white, the same Holy Spirit has to help. Then only we will understand the hidden truths and the mysteries behind it. और जिस पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया है लेखकों को इस बाइबल को लिखने के लिए, वही पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है, प्रकाशन देता है, तब हम इसके छिपे हुए सत्य को जान पाते हैं। And God reveals himself to the people, those who love him and those who obey him. God will never reveal himself to the people who blame him, who accuse him, because God's truth is very costly and very expensive and it is very precious. और परमेश्वर अपनी जो सच्चाई है, सत्य है, उसको अपने प्रेम करने वालों को प्रकट करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें प्रकट करता है। परमेश्वर कभी भी आरोप लगाने वालों को
दोष लगाने वालों को अपने कीमती सत्य को कभी प्रकट नहीं करते। It does not necessarily mean that human beings can understand the total truths concerning God. इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर से संबंधित सारे सत्य को मनुष्य समझ सके। Nobody on the face of the earth can understand sum total of God. और इसलिए इस धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य परमेश्वर को संपूर्ण रीति से नहीं समझ सकता है। That is how God of the Bible is so big, so awesome, so mysterious, so grand, so majestical. It's glorious, amazing. और इसलिए बाइबल का परमेश्वर इतना बड़ा है, वो इतना रहस्यमय है, वो इतना महान है, इतना महिमामय है कि कोई उसे पूरा नहीं जान सकता। So even when we slip into eternity, when we get into heaven, where God is, even then we will not be able to completely understand God. God is so great, beyond human understanding. और यही नहीं, परंतु अगर हम अनंत जीवन पाने के लिए स्वर्ग में भी चले जाएंगे, उसके बाद भी हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो हमारी मानवीय समझ से परे है, ऊपर है। So, one minute. The battery. Yeah. So, as we keep obeying the word, whatever is revealed, and God keeps revealing Himself unto us, so we grow little by little in the knowledge and understanding of God. और परमेश्वर की आज्ञा को जब हम मानते जाते हैं, तो उनका प्रकाशन हमें मिलता जाता है और धीरे धीरे हम उन्नति करते जाते हैं और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में हम सब बढ़ पाते हैं। Just like, children, when we admit them in the school, they begin with LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5, like that. And then child grows on and on. At some point of time, he may do even PhD or things like that. और आप देखे होंगे कि ठीक एक बच्चे के समान जिसे स्कूल में डाला जाता है, पहले LKG, फिर UKG, फिर उसके बाद पहले दूसरी तीसरी, और इस प्रकार वो बढ़ते हुए इतना बढ़ जाता है कि एक समय वो PhD कर पाता है। So as we keep walking with God, God throws little light on the truths, and He enlightens us, and we will know Him, and we will understand Him, and we will love and obey Him. और इसीलिए जो हमारा परमेश्वर है, वो जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो सत्य के ऊपर में अपना प्रकाश देता है, जिससे हम उसे समझ पाते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर को समझ पाते हैं, और उसके साथ फिर हम इस संसार में चल पाते हैं। I will just show one verse and then get back to our text, because we are talking about the mysteries of the triune God, and we need to definitely understand, if not total, but at least we should have a proper information so that we will believe because the Bible says so. और हम एक वचन निकालेंगे इस बात को, उस रहस्य को समझने के लिए जो परमेश्वर त्रिएकता के बारे में बताते हैं, ताकि हमारी जानकारी सही हो, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं तो इसे हमें जानना जरूरी है। So, John's Gospel, chapter 14 and verse 23. Jesus answered and said to them, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father loves him. My Father loves him. Um, और 1 minute, let me read. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. और यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके वचन 23 में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। In the Ten Commandments revealed to Moses on the Mount Sinai, in the Exodus chapter 19, 20, even up to 24, there, out of 10 commandments, God categorically says that I am the Lord God who brought you from Egypt, slavery. और आप देखेंगे जहाँ पर प्रभु ने 10 आज्ञा दिया था मूसा को सीनै पर्वत पर, जिसे हम निर्गमन की किताब 19-20 से लेकर 24 अध्याय तक पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने जब 10 आज्ञा दिया, उसमें से एक आज्ञा में स्पष्ट रीति से कहा कि मैं हूँ वो तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करके ले आया हूँ। And you cannot have any other God besides me.
इसलिए वो उस परमेश्वर ने कहा कि मेरे अलावा तुम किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। I think it's good to read, Exodus chapter 20. It's good to read, as it is instead of uh, interpreting. It's good to read Exodus chapter 20 and verse 1 onwards. Then God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Lower G. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a zealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children and the third and the fourth generation of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. और यहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन तक आप पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। So that is what Apostle Paul is also saying here. What is he saying in verse 6 of 1 Corinthians chapter 8? And there is but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for him, and one God, one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him. और इसी प्रकार प्रेरित पौलुस भी 1 कुरिन्थी 8 के 6 में कहते हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। And then verse 7, however, not all men have this knowledge, but some being accustomed to the idol until now eat food as if it were sacrificed to an idol, and their conscience being weak is defiled. जस्ट अ मोमेंट अंकल। यस अंकल प्लीज। तो यहाँ पे हम 1 कुरिन्थी की किताब उसके 8 अध्याय के 7 में यहाँ पे इस प्रकार पढ़ते हैं, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। Here Bible says that their conscience being weak is defiled. और यहाँ पे बाइबल बताती है कि उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो गया है। Whose conscience is that? और ये किनका विवेक है? Verse 7, let's read because text is very clear. However, sorry, however, not all men have this knowledge,
But some, being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. और यहाँ 7 वचन को पढ़ते समय हम स्पष्ट हो जाते हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। Please remember, Apostle Paul is writing this letter, few fragments of this letter answering to their questions. और ये बात याद रखिएगा कि प्रेरित पौलुस जो है इन कुरिन्थियों की किताब में कुछ वचन के भागों को सवालों के उत्तर के रूप में उन्होंने लिखा है। I have explained you all these things at the time of introduction of this letter. और जैसे कि मैंने इस पत्री के परिचय के समय ही मैं आपको ये बातें बताया था, So we need to remember the background of this letter. इसलिए हमें इस जो पत्री है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है। So he's talking about the people who came from, the idolatry background, who practiced earlier, and they asked a question. He's answering them. और यहाँ पे जो लोग हैं पौलुस उनके बारे में बात कर रहा है जो अन्य जातियों से और मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में से विश्वास में आए हुए हैं। So we have already seen that one version, a strong believer, one who doesn't care any idol, because idol is nothing, and then he doesn't bother whether it is offered to an idol or not. He will just eat whatever is offered to the idol. और हमने देखा कि पहले भाग में प्रेरित पौलुस मजबूत विश्वासियों के बारे में बात करता है जिनके लिए कोई मूर्ति जो है कोई वस्तु है ही नहीं, और वो केवल एक परमेश्वर के बारे में उसे आदर करते हैं, उनके बारे में पहले कहता है। He is talking about the other end, about the weak believer. और दूसरे तरफ वो निर्बल विश्वासियों के बारे में बात करते हैं। Weak believer, he doesn't have the knowledge required, and his conscience is defiled. और यहाँ पे हम निर्बल विश्वासी किसे कहते हैं? और निर्बल विश्वासी वे हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान कम होता है और उनका विवेक अशुद्ध हो जाता है। And then verse 10, if someone sees you who have knowledge dining in an idol's temple, will not his conscience, if he is weak, be strengthened to eat things sacrificed to idols? और यहाँ 10 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की भी वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? And then verse 11, through your knowledge, he who is weak is ruined, the brother for whose sake Christ died. और 11 वचन में लिखा, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। And then verse 12, and so by sinning against the brother and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. और 12 वचन में लिखा है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। And then now you read verses 8 and 9, you will understand. But food will not commend us to God. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we eat. और अब हम जब 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो ये बातें हम समझ पाएंगे इन सारे विषयों के जड़ को, जहाँ लिखा है कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो भी हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। And then verse 9 is very clear. Take care that this liberty of yours, because you are strong in faith, this liberty of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. और इसलिए 9 वचन को पढ़ते हम स्पष्ट हो जाते हैं, लिखा है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि तुम उनके सामने एक मजबूत विश्वासी हो। What Apostle Paul is trying to say, in other words, is you are strong in faith. That is right. That idol is nothing. Just because someone attributes godlike thing to idol, the idol doesn't become God. It's just an idol is idol. Stone is stone. A tree is tree. Any item is item. Non-living thing. But
Those who believe that particular idol is something, Apostle Paul says that their conscience is weak and conscience is defiled. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस बताते हैं कि एक जो मजबूत विश्वासी है उसके सामने तो मूर्ति मूर्ति कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके सामने मूर्ति कोई वस्तु नहीं है। भले ही मूर्ति पत्थर की हो, पेड़ की हो या जो की हो, वो पत्थर पत्थर है, पेड़ पेड़ है, वो परमेश्वर नहीं है। ये मजबूत विश्वासी जानता है। परंतु एक जो निर्बल विश्वासी होते हैं, वो जो लोग मूर्ति को कुछ समझते हैं, उनका विवेक निर्बल होने के कारण वो उनका विवेक अशुद्ध हो जाता है। He's saying that he's not talking about non-believer. He's talking about believer because verse 11 says the brother for whose sake Christ died. He's talking about a believer who is converted, but again he believes that. So because he's not having full knowledge of truth concerning God. That's what he says that he is a weak believer. Does it mean to say that weak believer should continue to be weak believer? और यहाँ पे पौलुस जो है वो अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो परिवर्तित होकर विश्वास में आए हैं उनके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 11 वचन में वो भाइयों को कह रहा है। तो निर्बल भाई जो है वो भाई है जिन्हें सत्य के पूरा ज्ञान नहीं है, और इसी कारण वो निर्बल हैं। तो क्या एक निर्बल विश्वासी को जीवन भर निर्बल ही रहना चाहिए? But he is not talking to weak believer, but he is talking to strong believer because strong believer can understand what Apostle Paul is trying to say. और इसलिए वह निर्बल विश्वासियों के बारे में बहुत बात नहीं करता, परंतु वो मजबूत विश्वासियों के बारे में कहता है जिन्हें देख कर निर्बल विश्वासी सीख सके। It is the responsibility of the strong believer to take care of the weak believer. और ये मजबूत विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो निर्बल विश्वासियों की को संभाले और उन्हें देख रेख करे। He very clearly says, in verse 9, take care that this liberty of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. और जैसे कि वो स्पष्ट रीति से वचन 9 में कहते हैं, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। And verse 11, through your knowledge, he who is weak is ruined for ruined the brother for whose sake Christ died. और 11 वचन में इस प्रकार कहते हैं, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। And verse 12 is something climax. He says that by sinning against the brother and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. और इसके 12 वचन में वो कहता है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। Then he talks about himself in verse 13. Therefore, if food causes my brother to stumble, I will never eat meat again, so that I will not cause my brother to stumble. और वो 13 वचन में अपने को लेकर स्पष्ट रीति से कह देते हैं, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। So ultimately, what Apostle Paul says is food is not important. Just because of food, you need not hurt or put a stumbling block before a weak believer. You better not eat non-veg at all. Food is not the matter. Why do you stumble your brother? Even better stop, better be vegetarian. Why non-vegetarian? और यहाँ पे पौलुस इस बात को बता रहा है कि भोजन एक बहुत ही जरूरी और अनिवार्य विषय नहीं है। इसलिए अगर हमारे भोजन के द्वारा हमारे भाई को ठोकर लगती है, तो इसलिए हम मांस मटन नहीं खाना है और हम उनके सामने शाकाहारी भी रह सकते हैं। Hope you understood it. I took at length. और यहाँ तक हमने कुछ बातें सीखी है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझे होंगे। And then verse 9, the central theme of verse 9 is chapter 9 and verse 23. और 9वें अध्याय का जो विशेष जो केंद्रीय संदेश है वो 23 वचन में है। Again, same freedom. Here is not talking about paganism, he is talking about the freedom. How a believer, a servant of God, will exercise freedom in some other perspective. और यहाँ पे पौलुस फिर से स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, अन्य जातियों के बारे में नहीं कहते, परंतु परमेश्वर के लोगों के बारे में कहते हैं कि वो किस प्रकार स्वतंत्रता में रह सकते हैं। He is focusing about his mission, his primary calling.
और पौलुस जो है अपनी विशेष बुलाहट के बारे में और उसके बुलाए परमेश्वर ने जो जिस योजना के लिए बुलाया उसके बारे में बातें करता है। If I have to summarize the whole chapter 9, I summarize like this in verse 23. I do all things for the sake of the gospel. और अगर मैं पूरे 9 वचन के सारांश बताना चाहूँ 9 अध्याय का, तो इस 23 वचन में हमें मिल सकता है जहाँ लिखा है, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। If you understand what gospel is, what Bible says about gospel is, you will also join with Apostle Paul saying that I do all things for gospel. और अगर आप सुसमाचार को समझ जाएंगे तो आप भी प्रेरित पौलुस के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे वो भी कहता है कि सुसमाचार के कारण मैं उन सब के साथ में भागी हो जाता हूँ। Perhaps there could be some kind of conflict among the believers. और कुछ विषय में आप देखेंगे कि विश्वासियों के मध्य में विचारों का मतभेद होता है। Should a full timer be fed by the church? Should we give offertory, or should we give, donations or whatever? Should we sponsor some money, or should we sponsor some, finances, so that the gospel preacher may survive? और आप देखे होंगे कि कुछ लोग पूर्णकालिक सेवा करते हैं, उनके लिए बातें कही जाती है कि उनको कहीं ना कहीं दशवांश मिलना चाहिए, उनको दान मिलना चाहिए, और उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए ताकि वो सुषमाचार की सेवा पूर्ण रीति अच्छी रीति से कर सकें। So let me express my own understanding in this matter. इस विषय में मैं अपनी समझ से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। I strongly believe that there is nothing called full time, half time, part time servants of God. और मैं अपने विश्वास से ये बातें बताता हूँ कि कोई भी सेवक पूर्णकालिक, अल्पकालिक या थोड़े से समय का ऐसे भागों में बटा नहीं होता है। I am totally convinced and convicted that all believers are all servants of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी विश्वासी और सभी सेवक। हेलो। Yes, please go ahead. I कैसे? believe that all believers are servants of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी विश्वासी और सभी सेवक। But only the difference is God calls some to be full timers, God calls some to work for their own living and then serve. और मैं एक चीज बात समझा रहा हूँ और वो ये है कि सभी विश्वासी और सभी सेवक हैं, लेकिन कुछ को परमेश्वर ने ऐसा बुलाया है कि वो हर समय सेवा करें, और कुछ को परमेश्वर ने ऐसा बुलाया है कि वो अपनी नौकरी के साथ में सेवा करें। I don't count those who resign from their government jobs, or from enjoying fat salaries or high status, maintaining high status quo, resign and come for full time as if they have sacrificed a lot. और मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो अपने कार्यों से इस्तीफा देकर, अपनी बहुत ऊंचे नौकरी को इस्तीफा देकर पूर्णकालिक सेवा के लिए आते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ अभी। No, 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 no. That's not what I'm saying, brother. What I'm saying is, हम्म। I'm not saying that those who resign from their government jobs are, highly placed in the society, having high status, and they are little bigger, and those who come for full time are lower. No, and all are the same in the sight of God. It's only the calling that matters. तो अंकल जी ये कहना चाहते हैं कि जो जो नौकरी करते हैं, जो प्रभु के लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन में रहते हैं, वो लोगों का स्टेटस बहुत हाई है, और जो लोग पूर्णकालिक सेवा करते हैं उनकी आदर कम है। इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। बस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने उन्हें कितने समय के लिए सेवा में बुलाया है। Exactly. So it all depends upon the calling of God. तो ये सारी बातें निर्भर करती है परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर। So if we have to discuss about Apostle Paul, how do you title Apostle Paul? Do you think that he is a full timer or part timer? अगर प्रेरित पौलुस के बारे में आप विचार करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या वो पूर्णकालिक सेवक थे या अल्पकालिक सेवक थे? Is a tent maker?
और आप जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो तंबू का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे। He works during the night times and then he keeps working whenever he gets a spare time. और आप जानते हैं कि वो तंबू का निर्माण का कार्य करते थे, और रात में वो कई बार तंबू बनाने का काम करते थे, और अपने बचे हुए समयों में कई बार सेवा करते थे। If you place a full timer, one who resigns, a highly standard of living and then comes to take up the any kind of work, without any earning, doesn't mean to say that they are highly placed in the spiritual arena. And those who work and then serve the Lord, they are placed in the second class citizens. No. और ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो ऐसे लोग जो बहुत ऊंचे पद में थे, बहुत बड़ी पद में नौकरी करते थे, वे लोग जब अपनी नौकरी को छोड़कर सेवा करते हैं बिना किसी सैलरी के, तो उनकी जो उनको हम कहें कि ये पूर्णकालिक हैं, और उनका स्तर बहुत ऊंचा है। और एक व्यक्ति जो अपने कार्यों के साथ सेवा करे उसका स्तर कम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। Please remember, even the gifts of the Holy Spirit are not of competitive one, but they are of complementing one. और याद रखिएगा कि पवित्र आत्मा का वरदान भी इसी प्रकार जो है वो लोगों की उन्नति के लिए है, ना कि उनके आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए है। It is God who decides who should do what and where and how. और ये परमेश्वर है जो ये चुनता है कि कौन कब कहाँ क्या करेगा। It's not the question how much you have, it's the question how do you do with what you have. और यहाँ ये सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना है, परंतु सवाल ये है कि आपके पास जितना भी है उससे आप क्या करते हैं। So that's what Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9. और यहाँ पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में प्रेरित पौलुस यही बात कर रहे हैं। When we read, we will be able to understand very clearly. Let us just read. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. My defense to those who examine me is this: do we not have a right to eat and drink? Do we not have a right to take along a believing wife, even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or do only Barnabas and I not have a right to refrain from working? What at any times, who at any times serve as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat the fruit of it? Or who tends a flock and does not use the milk of the flock? I am not speaking these things according to human judgment, am I? Or does not the law also says these things? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle the ox while he is threshing. God is God is not concerned about oxen, is he? Or is he speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it is written, because the plowman ought to plow in hope, and thresher to thresh in hope of sharing the crops. If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? If others share the right over you, do we not more? Nevertheless, we do not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Up to verse 14. और पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 1 से 14 वचन के बीच में हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जानते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को यह अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता?
कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाँवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोतें और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। So he gives three pictures. और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है मुख्य रीति से तीन चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। In the verse 7, he says, those who cultivate a vineyard, they will definitely eat the fruit of the vineyard. Who will obstruct them? And the shepherds, those who take care of flock, they will certainly make use of the milk out of the flock they are tending. And he's also talking about the priest and the Levites who offer sacrifices in the temple, and some sacrifices they will have a part as a food. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है मुख्य बातों को बताते हैं वचन 7 में, जहाँ पे लिखा है कि कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। और ये भी कहा कि किस प्रकार याजक और लेवी मंदिर में बलिदान की सेवा करते हैं और उन बलिदान की वस्तुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। I missed the fourth one. Brother properly covered in verse 7. A soldier never works with his own expense. और यहाँ पे जो चौथा भाग है कि किस प्रकार एक सिपाही जो है वो अपने नौकरी के लिए किस प्रकार अपने तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, वो करता है। And then what he says is, those who preach the gospel, they must also live, because and the church should support the evangelists. और इसलिए लिखा है कि जो प्रचार करते हैं सुषमाचार का, उनकी जीविका सुषमाचार के द्वारा चले, और कलीसिया जो है उनकी आर्थिक बातों में उनकी सहायता करे। So that is the reason why theologians normally say either you go or send. इसलिए आप देखे होंगे कि जो प्रेरितों की सेवकाई के बारे में लिखा है कि या तो आप जाएं या तो आप किसी को भेजें। You go as an evangelist and preach gospel. If you are busy, you cannot go, you have got many other commitments, then you send by taking care of all the needs of the evangelists. और या तो आप खुद ही इवेंजलिज्म की सेवा के लिए अर्थात सुषमाचार की सेवकाई के लिए जाएं, और अगर आप किसी काम में फंसे हैं, आप नहीं जा सकते, तो जरूर जो सुषमाचार की सेवा में जा रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करें। And verse 16, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of it, for I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. और 16 वचन में ऐसा लिखा, यदि मैं सुषमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुषमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। And he says, I have a stewardship entrusted to me. I have made myself a slave to all. Verse 19, I have become all things to all men. और 19 वचन में वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। He's an amazing evangelist. He gives a beautiful role model with his own testimony. और ये पौलुस जो है वो एक महान सुसमाचार प्रचारक थे जो अपना ही गवाही को उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। You know what he says, verse 19? Though I am free from all men, I have made myself a slave to all. और वो 19 वचन में बता रहे हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। Why? So that I may win more. और ऐसा मैंने सब लोगों का अपने आप को दास क्यों बना दिया है, ताकि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। To the Jews, I became as a Jew,
so that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, though not being myself under the law, so that I might win those who are under the law. To those who are without the law, as without the law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, so that I might win those who are without the law. और यहाँ 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। He talks about three categories of people in verse 20 and 21. और यहाँ पे 20 और 21 वचन में वो 3 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं। To preach gospel to Jews, he became a Jew. पहला वो कहते हैं कि मैं यहूदियों को प्रचार करने के लिए यहूदियों के समान बना। And those who are under law, he became under law. Doesn't mean to say that he compromised. But to convince them about the gospel, he used that very law itself. And then those who are without the law, to them also he became without the law. Doesn't mean to say that he compromised, but the gospel is not changed. The method of gospel is changed. और यहाँ पे दूसरा भाग में लिखा है कि जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन सा बना, हालांकि उन्होंने व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया। और तीसरा, वो लोग जो व्यवस्थाहीन थे उनके लिए वो व्यवस्था के होने के बावजूद भी व्यवस्थाहीन सा बने ताकि व्यवस्थाहीनों को खींच लाएं। और यहाँ पर भी उन्होंने व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया, परंतु सुसमाचार को तो नहीं बदला, परंतु सुसमाचार के सुनाने के तरीकों को थोड़ा बदला। So ultimately, these two verses talks about two kinds of people: those who are under the law, those who are without the law. तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में वचन बात कर रही है। एक वे लोग हैं जो व्यवस्था के अधीन हैं और दूसरे वे लोग जो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। So Jews are under the law, pagans are without the law. और हमें मालूम है यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन हैं और जो अन्य जाति लोग हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। And verse 22, the third category: to the weak I am weak, that I might win the weak. And then he says, I have become all things to all men, so that I may by all means save some. और यहाँ 22 वचन में लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। और अब मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। Wow, what an amazing understanding and maturity of Apostle Paul. हम यहाँ देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की समझ और उसकी जो सिद्धता है वो कितनी महान है। In other way, when we use the contemporary language, what we can say is gospel fits और all cultures. और दूसरे रूप में अगर हम इस बात को समझे तो ये है कि सुसमाचार सारी संस्कृतियों में सम्मिलित मतलब समा जाते हैं। So, gospel can be presented to all people of all cultures from Acts chapter 2 till the Lord's second coming. और आप देखे होंगे कि सुसमाचार जो है वो सभी लोगों को, जो कि सभी संस्कृति के लोगों को सुनाया जा सकता है और उनके साथ वो सामंजस्य से बैठ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे प्रेरितों के काम 2 से शुरू होता है और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक चलता रहेगा। So any background, any religion, any country, any age group, any culture, any tradition, sentiment, name it, gospel can be preached to the people without compromise. That the meaning of the gospel, the definition of the gospel, the text of the gospel should not be modified or changed. The message of gospel is same, but it can be presented in all contexts of the people, in all cultures of the people, in all backgrounds of the people. That is what Apostle Paul is saying in 1 Corinthians chapter 9. और हम देखते हैं कि जितने भी कोई भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, किसी भी देश के कोई क्यों ना हो, किसी भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, कोई भी संस्कृति के क्यों ना हो, कोई भी रीति रिवाज के क्यों ना हो, उन सभी लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और सुसमाचार का विषय और संदेश और सच्चाई कभी नहीं बदलता है,
लेकिन उनको सुनाने के जो तरीके होते हैं वे अलग अलग हो सकते हैं। ये बात प्रेरित पौलुस अध्याय 9 में बता रहे हैं। Right, in India, we live among Indians, among Hindus, among people of Islam, among people of, the various backgrounds, various religions, mindset, various understandings of the people. और आप देखे होंगे कि भारत में भी हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के रहने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, कई धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में हम यहाँ रहते हैं। Some people are atheists. They say that there is no God. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। There are some people who says that it is all science and nothing but science. If at all there is God, prove me through science. That's what there are some category of the people. और कुछ लोग हैं जो चिन्हों के बारे में बात करते हैं, और अगर चिन्ह ना दिखे तो वो नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि अगर वो परमेश्वर है तो वो चिन्ह दिखाए। So Apostle Paul knew how to present gospel to the people with whomsoever he meets with. He will convincingly present the gospel because gospel message is for all. और हम देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो सुसमाचार को प्रस्तुत करते थे, और जिनसे भी वो मिलते थे उनको सुसमाचार वो जरूर सुनाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुसमाचार सभी के लिए है। So I have become all things to all men. That's what verse 22 says. और इसलिए वो 22 वचन में कहता है, मैं सब के लिए आ, सब कुछ बना, So because he may save some. ताकि मैं किसी का उद्धार करा लूं। And he says, I'm doing it voluntarily. I'm not doing anything by force. और वो बातें कहता है कि मैं ये सब बातें बिना दबाव के स्वतंत्र रीति से करता हूँ। In verse 16, we find as if there is some kind of compulsion inside. Verse 16, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. और 16 वचन में ये वो कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ कमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। If you have to understand verse 16, you have to turn with me to 2 Corinthians chapter 5 and verse 14. अगर पहला कुरिन्ती 16 जो 9 अध्याय के 16 वचन को आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कुरिन्ती की किताब Chapter 5, verse वर्ष 14. और उसके दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय के 14 वचन को पढ़ सकते हैं। 5:14. For the love of Christ controls us in NASB version. In other versions, the love of Christ compels me. The love of Christ constrains me. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय उसके 14-15 में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। और ये जो शब्द है अलग अलग बाइबल के वर्षन में कहा गया है कि वो हमें एक प्रकार के दबाव डालता है, हमें नियंत्रण में ले लेता है और हमें विवश कर देता है मसीह का प्रेम, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। That means Apostle Paul is passionate to preach the gospel. Apostle Paul is burdened to preach the gospel. He says, if I do not preach the gospel, woe is me. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित थे, और उनके अंदर बहुत बड़ा बोझ था कि वो सुसमाचार सुनाएं, और अगर वो ना सुनाएं तो वो कहता है मुझ पर हाय है। When he sees the people without Christ, how they are heading towards the hellfire for eternity, he's so passionate for the perishing souls. He says, even I'm willing to die for their sake, and I'm willing to do anything for their sake to save them. और वो जानता था कि लोग बिना मसीह के अनंत आग में जल जल के नाश हो जाएंगे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए उसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह था। और प्रेरित पौलुस कहता है कि अगर मैं उसके लिए मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं ताकि कुछ भी करके मैं उनका उद्धार करा लूं। He says, I will do voluntarily. और वो कहता है कि ये बातें मैं स्वतंत्र रीति से बिना दबाव के करता हूँ। And verse 18, he says, then what's my reward? और इस When I प्रकार वो preach कहते the हैं कि gospel, I may offer the gospel without charge, as not to make full use of
my right in the gospel. और और वो इस बात को कहता है कि सुसमाचार का जो प्रचार है वो मैं सेतमेत करता हूँ, और जो कि हालांकि सुसमाचार में मेरा कुछ अधिकार है, फिर भी मैं उसे पूरी रीति से काम में नहीं लाता हूँ। It's not easy to make such statements. और इस प्रकार की गवाही बताना, कार्य करना आसान नहीं है। That's the reason why he says in verse 25, everyone who competes in the game exercises self control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. और इसलिए 25 वचन में कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। So he says that I have self control. और इसलिए वो पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन में संयम है, स्वयं का नियंत्रण है। And verse 26, he says that I have a goal, I have an aim. Therefore, I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. और 26 वचन में इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास दौड़ने का एक लक्ष्य है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। As Apostle Paul, as an evangelist, he gives beautiful pictures. He talks about his passion and his concern for the perishing souls. And then he says how he is able to do all that. He does these four things. He does voluntarily, he exercises self control, he has an aim or goal, and he disciplines his body. Verse 27. और इसलिए पौलुस कहता है कि वे एक विशेष सुसमाचार प्रचारक के रूप में वो बहुत ही बोझ रखने वाले व्यक्ति थे, उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए। इसलिए वो अपने जीवन को सुसमाचार की सेवा के लिए दिए थे, एक स्वतंत्र रूप में, और उन्होंने संयम के साथ और एक लक्ष्य को पालन करते हुए, और साथ ही अपने आप को कोड़े मारते हुए अनुशासन के साथ। And verse 27, I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. इसलिए 27 वचन में कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। What an amazing life of Apostle Paul. और प्रेरित पौलुस का जीवन हम कितने महान रूप में देखते हैं। And he gives a beautiful picture of his own life and testimony. और प्रेरित पौलुस अपने जीवन की खुद की गवाही का एक बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत करते हैं। May the Lord help us to follow the footprints of Apostle Paul, to understand Apostle Paul, to be a practical evangelist in our responsibilities. और प्रेरित पौलुस के जीवन को समझने की परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि उनके पद चिन्हों पे हम चल सकें कि किस प्रकार सुसमाचार सुनाते हैं, उसकी अच्छी समझ हमें मिल सके। May the Lord bless this word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। Shall we pray? आइए हम दुआ करें।